Hello everybody. Hi guys. I welcome you all to the very first lecture of your CA Intermediate Economics for Finance. Okay? So new syllabus, new subject, new pattern of study, new energy, everything new. Okay? Now, we have already discussed about economics of finance कि क्यों आप लोग के syllabus में ये add किया गया है, right? Obviously आप global thinkers बनने वाले हो, right? And आपका role जो है that is not limited to just auditing and accounting, but it is vast, it is quite comprehensive, it covers a lot of areas, and so you need to know about variety of things, right? Now, you know about the paper pattern, it's a 40 marks paper, all subjective, right? The first question that you will be getting is a compulsory question and you have to attend all part of it. Rest, out of 3 questions, out of 4 rest questions, you have to attempt any 3. Okay, so that is your paper pattern where in this economics for finance, that is a 40 marks paper. It is clubbed with your FM. Okay, so FM covers 60 marks and this part is 40 marks. In all those total 3 hours you have to attempt both the papers, right? Again you have all subjective questions. Question number 7, which forms the first question of this part, is a compulsory question, and then you have a choice of attempting any 3 out of 4 balanced questions. Okay, so this is how your paper pattern is going to be, right? Now, what will our focus be? Our focus will be, first of all, to understand the concept very clearly. Then, we'll highlight certain words, we'll highlight certain text that is required कि आप वहाँ पे एग्जाम में उतना पोर्शन लिखो, जरूर से वो वर्ड्स लिखो, जरूर से उस ग्रामर में आंसर को फ्रेम करो so that you score full. Okay, so next we are going to understand कि what are our important words, phrases or sentences. Then we are going to solve questions. Okay, and this is how your understanding will be complete, right? बात समझ में आ रही है? चलो, let's start with our very first chapter. So that is determination of national income. अब ये बचपन की बात थी कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, है ना? कब? सीए फाउंडेशन पे. ये बचपन की तो बात हो गई ना, और क्या भाई, अब आप लोग सब बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी चीजें हैंडल करने लग गए हो, सीधे इंटरमीडिएट लेवल. अरे इसके बाद क्या है, फाइनल्स है, और उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट. यार कम ऑन, ठीक है? तो बचपन की बात थी, हम पढ़ा करते थे थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों होता है ना? और कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, मार्केट किस तरह से रन करता है, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, बिजनेस साइकिल्स एंड ऑल, राइट? तो सीए जो मतलब हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो रेवरेंड मेंबर्स हैं वो जानते थे कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे लेवल की चीजें पढ़ाओ, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन्हें सीधे बड़े लेवल की चीजें पढ़ाओ. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम.
The concept obviously is a part of macroeconomics, right? Now, why are we reading it? What is the need of understanding how national income is determined? Do you have any idea what is the need of reading it? Yes, the way we have income understanding of any business, यानी अगर आप किसी छोटे टर्म में किसी एक बिजनेस की बात करते हो और उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी इनकम की एनालिसिस करनी होती है, राइट? कैसे उसकी सेल्स वगैरह रिकॉर्ड करके, स्टॉक वगैरह रिकॉर्ड करके हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, और उसके थ्रू हम कहां पहुंचते हैं, इनकम तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो फॉर अ वेरी स्मॉल बिजनेस लाइक दिस इज रिक्वायर्ड. Okay, similarly on a national level, getting to know about national income is required, right? ताकि हमें क्या पता चल सके, obviously ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना? और इससे हमें क्या पता चलता है, द परफॉर्मेंस ऑफ any economy, right? The way it is similar to what? The way we have accounting income. Accounting income से आपको क्या पता चलता है कि how the business is performing, right? How is the management working for it? Is the business profitable or not? Is the business profitable to be invested or not? Right? Similarly, हमें national income से ये पता चलता है कि how the economy is performing, how the government over there is performing, है ना? And what? Whether foreign investors should invest money in that economy or not. What is the condition of the residents of that economy? ठीक है? तो somewhere or the other ये सारी चीजें हमें एक मैक्रो लेवल पे पता चलती हैं, किससे? नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन से, राइट? नाउ सी, वी ऑल नो कि अकाउंटिंग भी एक बेसिस कहां से मिला था हमें क्या हुआ था, एक अकाउंटिंग पूरी बॉडी है हमारी, ठीक है ना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड ऑल. सो हमें वहां से क्या मिला है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिले हैं, करेक्ट? हमें एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मिला है जहां पे कुछ चीजें एकदम क्लियरली बताई गई हैं कि भाई दीज विल बी योर अकाउंटिंग अजम्पशंस, दीज विल बी योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना? एंड दिस वे यू आर गोइंग टू डू अकाउंटिंग सो दैट द अकाउंट्स आर कंपेरेबल, करेक्ट? सिमिलरली फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, UN, what's UN? United Nations, right? जो प्लेटफॉर्म है कहाँ पे, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. सो वहां का जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन मेजर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. ओके, सो अब ये इन्होंने क्यों बताया, ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, कंपेरेबल हो, है ना, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो. Okay, so what is the role of SNA? SNA has given us the measures to determine national income, and that is what? That is comprehensive, that is conceptual. Okay, and that makes the comparison between countries possible. Correct? अगर आप अलग तरीके से, अगर for example let us say चाइना अलग तरीके से अपनी नेशनल इनकम डिटरमाइन कर रहा है, रशिया अलग तरीके से कर रहा है, ब्राजील अलग तरीके से कर रहा है, स्पेन अलग तरीके से कर रहा है, इंडिया अलग तरीके से कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा? We can't compare that which economy is growing faster, which economy is not that developed. Why? Because everybody will be advocating the point that we determine it this way, we determine it that way, and so the comparison is not possible. Right? The comparison becomes possible when all are evaluated on the common platform. And UN system of national accounts gives us that common platform for determining the national income of various economies. Correct? ठीक है? बात समझ में आ रही है?
अब कोई तो महान लोग होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भाई नेशनल इनकम अकाउंटिंग करो. सो हु आर दीज ग्रेट पीपल? दे आर Richard Stone and Simon Kuznets. Okay, so these are two people जिन्होंने ये बताया था कि आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग करो so that हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या कर सके, कंट्रीज की परफॉर्मेंस को एसेस कर सके. राइट नाउ लेट्स कम बैक टू दिस थिंग. व्हाट? National income. Now when I say national income, you all want to know what is national income, right? Yes ma'am, we all want to know what is national income. This is national income. Astonished, right? ये क्या है? ये नेशनल इनकम है. मैम आप क्या बुद्धू बना रही है? नहीं नहीं, यही नेशनल इनकम है. एनएनपीएफसी, इसका नाम है एनएनपीएफसी. ठीक है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. लो बता भी दिया, फुल फॉर्म भी बता दिया. अब उससे क्या फर्क पड़ गया? क्या चैप्टर खत्म हो गया? क्योंकि डिटरमाइन तो हो गई, नेशनल इनकम पता तो चली गई क्या होता है. नहीं, ठीक है. सो अब यहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू गो थ्रू a lot of steps, and that starts from your concept of ठीक है. So to understand what is NNPFC, that is our national income, we have to understand all these concepts. Okay, we have to understand all these concepts, starting with GDP MP. Okay, starting with GDP MP, we'll go along. Okay, everything is written in your book and we'll strictly follow what is given in the text. Okay, so right now you don't have to write anything, you just have to pay ultimate attention here. Okay, okay, are you following me? समझ में आ रही है बात? सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ समझना है. मैंने बोला पहले हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आंसर लिखना कैसे, यानी व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस और फॉर्मूला. ओके, एंड देन वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चंस. सो डू नॉट राइट एनीथिंग एज ऑफ नाउ. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आई विल आस्क यू टू राइट, बट एज फार एज आई थिंक यू वोंट बी रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग. एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक. राइट नाउ प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड. ओके, नाउ सी what's GDP MP. What is this MP, 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 then FC, then FC, FC, FC. Okay. अब देखो, हम दो अप्रोच से कोई चीज पढ़ सकते हैं, करेक्ट? एक होता है हमारा इनपुट, राइट? एक होता है आउटपुट. इनपुट गया, कुछ 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 हुआ, आउटपुट आया. ठीक है, दिस आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट, राइट? सो देयर आर अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इट. कैन वी जस्ट फॉलो दिस?
या तो हम मार्केट प्राइस पे पढ़े, यानी जिस दाम पे कोई चीज हमें मिलती है, राइट, जिस दाम पे कोई चीज हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है, या तो हम उस प्राइस को बेस बना के चले। ओके, क्योंकि आप एक बात जानते हो, अकाउंटिंग चाहे कोई भी हो, चाहे कोई एक बिजनेस फर्म की अकाउंटिंग हो, चाहे कंपनी की अकाउंटिंग हो, चाहे नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो, बात तो मॉनिटरी टर्म्स में ही होने वाली है, राइट, वेरी ट्रू। हम इस तरह से तो जोड़ नहीं सकते कि हमारे यहाँ 400 किलो सेब हुए, 800 किलो संतरा हुआ, है ना, और कितना, फॉर एग्जाम्पल 32,000 आवर्स की IT डेवलपमेंट हुई, इस तरह से तो हम जोड़ नहीं सकते। एवरीथिंग हैज टू कम टू अ मनी लेवल, एवरीथिंग हैज टू कम टू अ मॉनिटरी लेवल। हमें बोलना पड़ेगा कि भाई 1,000 करोड़ के सर्विसेज डेवलप हुई है, 3,000 करोड़ की IT सर्विसेज डेवलप हुई है, ठीक है, हर चीज मॉनिटरी टर्म्स में होगी, राइट। अब वो मॉनिटरी टर्म दो तरीके से हो सकता है, या तो आप एकदम उसको मार्केट प्राइस पे देखो, ओके, और या तो फिर ये प्रोडक्शन जब हो रहा था तो प्रोडक्शन के लिए हमने इनपुट को कुछ पैसा दिया होगा, ओके, और इनपुट्स क्या होते हैं आपको पता है, इनपुट्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। सो या तो आप इस तरह से देखो कि इन चारों को जो पैसा देने में पैसा लगा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ आउटपुट, या फिर जिस वैल्यू पे हम उसे मार्केट में बेच रहे हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग GDP MP, GNP MP, NDP MP and NNP MP, we are focusing on what? On the price level at which goods and services are available in the market. Okay, is that right? Now let's go. ये बेस था, अभी हम इसको आगे और एलैबोरेट करेंगे जब हम फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे और जब हम मेथड्स पे आएंगे, पर अभी के लिए आप समझो कि जब हम बोलते हैं मार्केट प्राइस तो उसका मतलब होता है कि जिस पे ये अवेलेबल था, ओके। Now see, what is gross domestic product at market price? This GDP MP is gross domestic product at market price. वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी कि ये पूरी ट्रेन शुरू ही कहां से हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, इसलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को आप समझो, हर शब्द का एक मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हम इसको समझेंगे रिवर्स ऑर्डर में। मैंने मार्केट प्राइस का मतलब बता दिया कि जिस प्राइस लेवल पे द गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन द अल्टीमेट मार्केट, ओके, ये आप समझ गए। प्रोडक्ट, what is product here? Product is the market value of all the goods and services that is produced in an economy during a particular period. बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्रोडक्ट का मतलब कि हम किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, rather we are talking about the entire production, the total production that took place in an economy during a particular period, that we can say as during an accounting year, okay, क्योंकि हम साल भर का देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट से मतलब हो गया कि एक इकोनॉमी में टोटल कितना क्या हुआ, उपज हुई, ओके, कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट कैन बी फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो तीनों सेक्टर्स मिला के, एक एक दुकान मिलाकर, एक एक जना मिलाकर, ठीक है, कितना प्रोडक्शन एक इकोनॉमी में हुआ, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके।
We can say it is the sum total of market value added by all the sectors in an economy, okay, during a particular period or during an accounting year. बात समझ में आ रही है? Can we follow the same in the text, please? The very first page, you can see the definition of gross domestic product. Gross domestic product at market price is a measure of market value of all the final economic goods and services. Yes, I'll come to that part, gross of depreciation, produced within the domestic territory of a country during a given time period. Okay, बात समझ में आ रही है? So, अभी हमने बात की किसकी? प्रोडक्ट की. डोमेस्टिक का क्या मतलब हुआ? डोमेस्टिक का मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं एक टेरिटरी की. Okay, now this is India, so I don't want to de-shape the map, but somewhere or the other, this is our India, okay. And this is the peninsula region, and this is how it is. So, okay, fine. Quite de-shaped it, but just to understand, okay. So, when I say domestic, I mean within this territory. Okay, this is our territory. When I say India, this is our territory. Okay, starting from Jammu and Kashmir till Kanyakumari, from Gujarat to your Manipur, Meghalaya and everything. So, this is your territory. When I talk about gross domestic product, I focus on the word domestic, क्योंकि इसमें मतलब है कि आप उस टेरिटरी के अंदर बात कर रहे हो. अब आप देखो, आप जब अपने शहर में जरा घूमने निकलते हो तो वहां पे एक होता है गुप्ता चाट भंडार, ठीक है. कहीं ना कहीं भाई आप मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर इन दिल्ली, ठीक है. अब यहाँ पे एक गुप्ता चाट भंडार भी है. एक तो मैम आप पढ़ाते पढ़ाते चाट पकौड़ी बहुत याद करती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है. दूसरी तरफ मैकडी भी होता है, ठीक है. अब बताओ, क्या मैकडी इंडियन कंपनी है? नहीं, मैकडी इज अ फॉरेन कंपनी. गुप्ता चाट भंडार इज टिपिकली इंडियन कंपनी, ठीक है. हाँ भाई, कंपनी नहीं लो, तुम वो ले लो भाई, क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप ले लो, ठीक है. क्या पता गुप्ता चाट भंडार प्राइवेट लिमिटेड हो, तुम्हें क्या पता, ठीक है. अब देखो, ये इंडियन कंपनी है, ये एमएनसी है, यानी कि मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आई इंक्लूड द अर्निंग दैट हैज अकर्ड विद इन दिस टेरिटरी. ओके, आई इंक्लूड व्हाट, इस टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुप्ता चाट भंडार का योगदान हो, चाहे वो मैकडी का योगदान हो, दोनों ही कंसिडर किया जाएगा. राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक. इस टेरिटरी के अंदर. अब इस टेरिटरी के बाहर, ओके, इस टेरिटरी के बाहर ये रहा मेरा यूके फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे बैठते हैं मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, ठीक है ना. इन्होंने एक कंपनी खोली और इन्होंने वो कंपनी फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या जो भी, ओके, और इन्होंने वो कंपनी रजिस्टर कराई है इंडिया में. बात समझ में आ रही है? उसकी एक, जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कंपनियों के और ऑफिसेज यहाँ पे होते हैं, वैसे उनके पास भी वो ऑफिस यहाँ पे है, ठीक है. ये एक इंडियन कंपनी है इनके पास. कहाँ? यूके में. क्या हम डोमेस्टिक में इसको जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे. बात समझ में आ रही है? क्या हम डोमेस्टिक में उसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे. चलो, अब लक्ष्मी मित्तल वाला एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इस तरह समझ लो कि रिलायंस जिस तरह से फैल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां यूके में तुम्हारे पास एक जियो कंपनी है, दैट इज ऑब्वियसली एन इंडियन कंपनी, ठीक है. बट क्या हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इस वाली जियो कंपनी को जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे.
क्या हम इस वाली जियो कंपनी को जोड़ेंगे? हाँ, जोड़ेंगे, ठीक है। सो डोमेस्टिक का मतलब आप समझो व्हाट इज हैपनिंग इन दी टेरिटरी इटसेल्फ, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो विदेश से आके कोई यहां कमा रहा हो, लेकिन इंडिया में कमाई हुई है, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा है, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम पहुंच गए डोमेस्टिक तक। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन एडेड हो। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सी वी ऑल नो, और हम बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं 11वीं 12वीं में डेप्रिसिएशन के बारे में। सो वी नो कि डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टेयर ऑफ फाइनल गुड्स, wear and tear of our capital goods, right? I'm sorry, I said final goods. Wear and tear of our capital goods. Okay. So ये जो consumption है, अब आप देखो कि gross में उस consumption को भी add किया जाता है। किस consumption को? जो final goods and services, I'm very sorry, जो capital goods हमारे consume हो रहे हैं, उसको भी add किया जाता है। कहां पे? gross में। समझ में आ रहा है? क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि एक इकोनॉमी में गुड्स ऐसे ही तो प्रोड्यूस हो नहीं जा रहे, राइट? योर फाइनल गुड्स आर आल्सो डेप्रिसिएटिंग इन बिटवीन। तो वो जो कंजम्पशन है उसको भी हम ऐड करके चल रहे हैं, क्योंकि समवेयर और द अदर वी हैव यूटिलाइज्ड दैट आल्सो, ठीक है? इसलिए दैट इज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज the total market value of all the goods and services produced in the domestic territory, gross of depreciation during a given time period is GDPMP. बात समझ में आ रही है? Is that clear? Okay. Same is given over there. In other words, it is the sum total of value added by all producing units in the domestic territory and includes value added by current production by foreign residents or foreign owned firms. ठीक है, मैकडी की भी कमाई उसमें लिखेंगे, पिज्जा हट की कमाई लिखेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस की कमाई लिखेंगे। समझ में आ रहा है? Okay, the term gross implies that GDP is measured gross of depreciation. That means consumption of capital goods have to be taken into account, and domestic means domestic territory or resident production units. ठीक है, यानी कि जितनी कुछ यहाँ पे आ गया जो रेसिडेंट हो गया, अभी आप टैक्स में पढ़ोगे व्हाट इज रेसिडेंट, व्हाट इज नॉन रेसिडेंट, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे इस बाउंड्री के अंदर आ गया वो रेसिडेंट हो गया, एंड देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो, ठीक है? नाउ व्हाट डज जीडीपी एक्सक्लूड्स? जीडीपी एक्सक्लूड्स जो काला धन वाला कार्यक्रम हो रहा है, या फिर जो गोरख धंधे हो रहे हैं जिनका कोई अकाउंटिंग हो ही नहीं रहा है, जैसे कि स्मगलिंग, ओके, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह वगैरह, जिस तरह की ऐसी जो भी इलीगल चीजें हो रही हैं जिनको एक्चुअली अकाउंट्स में ले ही नहीं रहा है कोई, उसको हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ सकते, ठीक है? इलीगल पेमेंट्स वगैरह, यानी अगर एक देश में स्मगलिंग बढ़ रही है और स्मगलिंग की वजह से दनादन क्या हो रहा है, बहुत कमाई हो रही है, तो हम उसको अकाउंट में नहीं ले लेंगे, राइट? बात समझ में आ रही? दूसरा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, आई एम गिविंग 50,000 टू माई मदर, my mother is passing that 50,000 to my daddy is passing that 50,000 to my uncle is passing that thing to my auntie. Now nothing is happening in between, it's just financial transactions, okay? कुछ यहाँ पे ना वैल्यू ऐड नहीं हो रही है ना, बस क्या हो रहा है, वो पैसा पास ऑन हो रहा है। सो दैट इज नॉट व्हाट इज एडेड इन जीडीपी, ओके? मेरी मम्मा नहीं कह सकती कि उन्होंने 50,000 ऐड किए, नो, दैट्स जस्ट गिवन बाय मी फॉर नथिंग एडेड, ओके? देन दैट 50,000 इज पास्ड ऑन बाय हर टू डैडी, now that is again no value added. So these kind of financial transactions are not taken into account. Now one more thing is there, what is that? Transfer payments. What are transfer payments? Transfer payments are unilateral payments. What are unilateral payments? One way payment, okay? One way payment जो किसी कारण से दिया जाता हो, लेकिन जिसके बदले में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है,
जैसे कि पेंशन होती है रिटायर्ड वर्कर्स की, ओके। अब रिटायर्ड वर्कर्स जब तक अपनी सर्विसेज देते थे तब तक वो चीज हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट बनता था, लेकिन अब कुछ दायित्व होता है कंपनी का और सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि भाई जिसने तुम्हारे यहाँ 60 साल तक सर्विस दी है, ठीक है, उसको उसके बाद ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू प्रोवाइड देम विथ पेंशन. Now, when a company is providing pension to the employees, okay, to the retired employees, or that thing is deposited into government account and they are withdrawing their pension out of government accounts, they are actually not value adding to the economy, okay. They are not adding any kind of value to the economy, and so these kind of payments are what? Unilateral payments, okay. बात माने, जिनके बदले में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. समझ में आया? जैसे सरकार सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स करती है, ठीक है, जिनके बदले में कोई वैल्यू एडेड नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स, ओके. या फिर जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या होगा? ये ट्रांसफर इनकम, ठीक है. बात समझ में आ रही है इतनी? ओके. सो जीडीपी एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and the illegal transactions, and what it includes the value added by all the goods and services produced in the domestic territory, okay, the market value of it. And domestic territory का मतलब कि foreign company या foreign owned firms जो है उनका भी पैसा यहाँ पे include किया जाएगा, उनसे भी जो production हो रहा है वो भी include किया जाएगा, okay. Now we come to gross national product at market price. अब डिस्कशन हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें इसमें भी इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है, हमें अब बस इसका मतलब जानना है, ओके. हमें किसका मतलब जानना है? हमें नेशनल का मतलब जानना है. नाउ व्हाट इज नेशनल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से नेशनल? नेशनल मींस व्हाट बिलोंग्स टू आवर इकोनॉमी, ओके. व्हाट बिलोंग्स टू वंस इकोनॉमी दैट हैज टू बी इंक्लूडेड, रेस्ट हैज टू बी एक्सक्लूडेड. अब देखो इसमें ये समझो, जब हम जीडीपी करेंगे तब हम इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे. ये मैकडी जो है यहाँ पे गुप्ता चाट भंडार भी आएगा, मैकडी भी आएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये हमारी टेरिटरी के अंदर अंदर की बात है और इसलिए हम जो काम बाहर हो रहा है उसको छोड़ देंगे. भला ही वो मेरा है, ठीक है, मेरा ही लाडला है जो बाहर जाके काम कर रहा है, लेकिन मैं उस बेचारे की इनकम जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकती. और ये जो विदेशी लोग हमारा आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जंक फूड सप्लाई कर रहे हैं, उनकी कमाई में लेनी पड़ती थी, ठीक है. लेकिन जीएनपीएमपी ने क्या किया? इसने कहा कि बेटा जरा एकदम ट्रू इंडियन बन जाओ और ये जो विदेशी हैं इनकी कमाई को एक्सक्लूड कर दो और ये जो मेरा ही लाल है जो बाहर जाके काम कर रहा है इसकी कमाई को इंक्लूड कर लो, ठीक है. तो अब इस प्लस माइनस के रिलेशन को हम यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम from abroad, okay, that is called net factor income from abroad. So what is GNPMP? GNPMP is nothing but GDP MP में से net GDP MP में से net factor from income from abroad को हम क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे. बात समझ में आ रही है? अब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये होता क्या है? इट इज द अर्निंग ऑफ द इंडियन कंपनी एंड द इंडियन फर्म्स वर्किंग आउटसाइड इंडिया माइनस द अर्निंग्स ऑफ द फॉरेन कंपनीज और द फॉरेन ओन्ड फर्म्स वर्किंग इन इंडिया.
बात समझ में आ रही है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम बाहर जाके ज्यादा कमाए होंगे किसकी तुलना में, जितना बाहर वाले हमारे यहाँ कमा रहे हैं, तब तो जीएनपी जो है वो जीडीपी से भी बड़ा होगा। इसका मतलब तुम बाहर जाके बढ़िया कमा रहे हो, लेकिन अगर जीएनपी जीडीपी से छोटा हो गया, इसका मतलब है कि विदेशी हमारे यहाँ ज्यादा कमा रहे हैं और हम बाहर कम कमा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की फॉर्मल डेफिनेशन प्लीज फॉलो इन द बुक, टर्न द पेज, the second page itself. NFIA is the difference between aggregate amount that a country's citizens and companies earn abroad and the aggregate amount that the foreign citizens and overseas companies earn in India. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल ले लो जरा। जैसे you know what happened, now Priyanka Chopra is working both ways, ठीक है, वो इंडिया में भी काम करती है, वो यूएस में भी काम करती है, समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई तो बियॉन्से आई, है ना। अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो बियॉन्से जो यहां कमाई है, ओके, वो इनकम इंक्लूड होगी और प्रियंका चोपड़ा जो बाहर कमा रही है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। बट व्हेन वी कम टू कैलकुलेशन ऑफ जीएनपीएमपी, ओके, विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वील सी कौन अपना है कौन पराया। ओके, बियॉन्सी तुम बाहर से आई हो, तुम्हारी इनकम हम नहीं ले सकते, और प्रियंका चोपड़ा बेटा तुम ही यूएस जाके कमा रही हो लेकिन तुम हो तो हमारी, ठीक है, आओ तुम्हारी इनकम हम ले लेंगे। समझ में आया? तो दिस इज अल्टीमेट अपना, बट दिस इज जस्ट व्हाट, अपने घर में, चाहे अपने घर में आके कोई भी कमाए। ओके, तो टेरिटरी से किसको मतलब है? टेरिटरी से जीडीपी को मतलब है, लेकिन असली अपनों से किसको मतलब है? जीएनपी को मतलब है। चाहे अपना जाके कहीं भी कमाए इट विल इंक्लूड, और पराया अगर यहां कमा रहा है, विदेशी अगर यहां कमा रहे हैं तो दैट विल बी एक्सक्लूडेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब ये हो गया बेस। अब ऑब्वियसली यहां पे क्या इंक्लूडेड है? यहां पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन शामिल है। अब हमारे लिए एनडीपी एमपी समझना और आसान है। क्यों? क्योंकि एनडीपी एमपी कुछ नहीं है, सिर्फ जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नेट में यू ऑलवेज नो कि डेप्रिसिएशन जब हम हटा देते हैं तो ग्रॉस से नेट बन जाता है। तो दैट मींस ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, दैट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, दैट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स। खाली ये क्या लेता है? इट टेक्स इनटू अकाउंट, सी आई रोट इट रॉन्ग, आई एम सॉरी। So net domestic product at market price means total value added by Indian companies and Indian firms working in India and abroad at market prices. ठीक है, यानी total market value of all the goods and services produced by, now here I am not saying produced within India, rather I am saying produced by Indian companies and Indian firms, okay, whether in India or abroad, and it excludes the earnings of foreign nationals in India, foreign companies or foreign owned firms in India. बात समझ में आ रही? तो that is net domestic product at market price. Similarly, we have net national product. What will be the net national product? It will be what? एनडीपी एमपी में क्या ऐड करेंगे हम?
I'm very sorry, the definition I just gave was of national product. I didn't focus. यहाँ पे domestic product का मतलब within India और national product का मतलब हो गया by Indian companies और Indian firms. Okay, चाहे वो in India हो चाहे बाहर हो. और जब हम कह रहे हैं national product, इसका मतलब we exclude the earnings of foreign companies or foreign owned firms in India. ठीक है, तो एनडीपी में जब हम एनएफआईए को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ये हो गया मेरा मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट. नाउ कैन वी जस्ट फोकस ऑन द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दिस एंड प्लीज मार्क विथ मी द वर्ड्स, दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स. स्टार्टिंग फ्रॉम जीडीपी एमपी, gross domestic product at market price is a measure. Please mark measure. In examination, you can't write is the totality of or is whatever. I mean, you have to write that it is a measure because we are dealing with measurement of national income. We are dealing with understanding what national income is. और system of national accounts, UN system of national accounts ने भी जो हमें criteria दिया है वो measurement का दिया है, इसलिए आपको वहां पे लिखना होगा it is a measure. Okay, now it is a measure of the market value. Please encircle market value of all the final goods and services. Please encircle final. Yes, I'll tell you the rationale of encircling final also. Final economic goods and services. अब देखो final को अलग से encircle करो, ठीक है, final को, ये final को अलग से encircle करो, इकोनॉमिक को अलग से एनसर्कल करो और गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ ऐसे करो. ठीक है, नाउ आई विल गिव यू द रैशनल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट टू दैट पार्ट वी विल टेक टाइम टू कम. ठीक है, अभी समय लगेगा वहां तक आने में, लेकिन अभी के लिए आप एनसर्कल अलग करो. तो आप मेजर एनसर्कल करोगे, आप मार्केट वैल्यू एनसर्कल करोगे, आप फाइनल अलग करोगे, इकोनॉमिक अलग करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को करोगे, ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन करोगे. वाई? बिकॉज ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होता है. प्रोड्यूस्ड विद इन, अब विद इन को एनसर्कल करो, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, इससे आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी पे किसका फोकस रहता है? हमेशा जीडीपी का, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का. ओके, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. Excludes transfer payments, financial payments, non-reported output generated through illegal transactions. Now come to gross national product. Gross national product again आपको measure शब्द ध्यान रखना है, market value शब्द ध्यान रखना है, final economic को अलग अलग encircle करना है, goods and services आपको ध्यान रखना है, gross of depreciation वहां रहेगा ही रहेगा. Produced within the domestic territory of a country by normal residents during an accounting year, including net factor income from abroad. So the main differentiating line is including net factor incomes from abroad. ठीक है, तो यानी या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो कि produced by Indian companies and Indian firms outside India and the residents. Okay, and it excludes the earnings of foreign companies and foreign owned firms. Okay, लेकिन आप उसकी जगह सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि it includes net factor income from abroad. Now, please pay attention to one thing. If in examination it asks a clear definition कि please define gross national product at market price, you can quote this definition. Undoubtedly, you will quote this definition. But then you are not just going to leave the answer there. You will have to explain what is net factor income from abroad. Okay? So अगर आपको एग्जाम में आता है कि जीएनपी बताइए, ठीक है, तो आप पहले तो आप अपना जितना भी आप जीडीपी के बारे में जानते हैं, यानी अगर आप ये इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर रहे हो तो पहले तो आप जीडीपी पूरा लिखोगे और फिर आप लिखोगे इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब जब आप जीडीपी एक्सप्लेन कर ही चुके हो तो उसमें ये सारी चीजों का तो मतलब आ ही गया, लेकिन फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो उसके लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के
डेफिनेशन भी याद रखोगे। क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट अमाउंट दैट अ कंट्री सिटीजंस एंड कंपनीज अर्न अब्रॉड। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। दैट द कंट्रीज सिटीजंस एंड कंपनीज, यानी कि चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो जियो कंपनी हो, सिटीजन हो या कंपनी हो, दोज दैट आर अर्निंग अब्रॉड एंड द एग्रीगेट अमाउंट, यानी उनका डिफरेंस, यानी कि अपना माइनस पराया, ओके, एंड द एग्रीगेट अमाउंट दैट द फॉरेन सिटीजंस एंड ओवरसीज कंपनीज अर्न इन इंडिया। यानी जो बियॉन्से यहाँ आके पेमेंट लेके जाती है, जो मैकडी वाले यहाँ कमाते हैं, पिज्जा हट वाले यहाँ कमाते हैं, या जो एन नंबर ऑफ एमएनसीज इंडिया में है, जो वो लोग कमाते हैं, उनकी कमाई उसमें से हटा दो। ओके, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये अपनों की होता है और ये अपने घर में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ there is also a term defined national. The term national refers to the normal residents of a country who may be within or outside the domestic territory of a country, and it is a broader concept compared to the term domestic. So domestic खाली क्या include करता था? It just included कि इस boundary के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन national सिर्फ बाउंड्री के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है अगर अपना कहीं और जाके भी कमा रहा है तो पहले उसको इंक्लूड करो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ दैट वाज ऑल ऑन मार्केट प्राइस, दैट वाज ऑल ऑन मार्केट प्राइस। कमिंग टू फैक्टर कॉस्ट, कमिंग टू व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। अब मैं इतना सब कुछ इरेज कर सकती हूं प्लीज? Now coming to factor cost. Okay, so we have understood these four concepts on market price. Now we are coming to factor cost. So somewhere or the other the concept remains same, but when we talk about factor cost, I'll come back to our initial discussion. कि हमारा initial discussion क्या था? देखो, मैंने बात की थी कि इनपुट होता है ना, फिर वो प्रोडक्शन में जाता है और क्या बन जाता है? आउटपुट। ओके, अब जब हम कहते हैं प्रोडक्शन में जाता है, तो प्रोडक्शन में जाने का मतलब कि वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस पे वर्क कर रहे हैं। ओके, अब इस इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क होता है? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फर्क होता है, करेक्ट? These factors of production in different forms. लैंड, भाई तुम्हें जगह का भी फायदा मिल रहा है, तुम्हें अपने लेबर से तुम काम भी करा रहे हो, कैपिटल से तुमने कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, वहां पैसा लगाया है, और एंटरप्राइज ऑब्वियसली वहां पे एक बहुत समझदार आदमी, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा है, जो इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज कर रहा है, राइट? और तब तुम्हारा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इनपुट और आउटपुट में ये जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, इन्होंने वर्क किया है तो जाके आउटपुट निकला है। तो इनपुट और आउटपुट में फर्क किस चीज का है? उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है, राइट? अब देखो, यानी आउटपुट की वैल्यू जो है वो हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वन इज फैक्टर कॉस्ट एंड वन इज मार्केट प्राइस। When I say factor cost, that means the cost that has been paid to all the factors of production to get the resultant output. बात समझ में आ रही है? अब मैंने कुछ तो पैसा दिया होगा लैंड को, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर को इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। तो ये जो फैक्टर को हम जो कॉस्ट भर रहे हैं, वो फैक्टर्स के लिए क्या है? फैक्टर इनकम। हमारे लिए क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ओके,
जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम है, देने वाले के लिए कॉस्ट है. सो सिंपल. नाउ सी, एक हो गया फैक्टर कॉस्ट में, और वहां से मार्केट प्राइस तक आने में बताओ किस चीज का फर्क आता है. यहां से मार्केट प्राइस तक आने में हमारे पास इसका फर्क आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क आता है. समझ में आ रहा है? कैसे हमें पता चलता है कि जो चीज, जैसे मान लो तुमने रेंट दिया कहीं पे प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 रुपए, वेजेस एंड सैलरीज दी 500 रुपए, तुम कैपिटल मतलब कि जो भी कैपिटल गुड्स खरीद के लाए हो वो किसी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उस पर, ठीक है, ये दाम तुम भर रहे हो, ये 1000 रुपए, और तुम्हारा एंटरप्रेन्योर जो अपनी प्रॉफिट है, जो अपनी क्या है, जो अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट वगैरह है वो सब जोड़ जाड़ के बता रहा है, अगेन 500 रुपीज. तो योर फैक्टर कॉस्ट इज 100 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 500, दैट इज 2100. But still that thing is available to you in the market at 2500. So what is this gap of 400? That is nothing but the indirect taxes that is laid upon you. Right? Now these indirect taxes can be of two forms. One is the product taxes and one is taxes on production. दोनों अलग चीजें हैं, ध्यान से समझो. One is product taxes, जैसे कि जो चीज particular unit of product पे लगे, जैसे और तुम्हारा पहले लगता था वैट और सर्विस टैक्स, अब सीधे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी के जगह भी क्या लग जाता है, जीएसटी. ओके, सो ये सब दीज आर द टैक्सेस दैट आर लेड ऑन प्रोडक्ट इटसेल्फ. नाउ व्हाट आर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोड्यूस करने के लिए आपको टैक्स देना पड़े, किसी तरह की कोई लाइसेंसिंग है, ठीक है ना, कोई पोल्यूशन टैक्स है या किसी और तरीके के जो टैक्सेस हैं जो आपको देने पड़ जाते हैं, दैट इज व्हाट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. और जो टैक्स इनडायरेक्टली प्रोडक्ट पे लगता है जिसको अल्टीमेट कंज्यूमर बेयर करता है, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट टैक्सेस. तो दीज इनडायरेक्ट टैक्सेस आर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्ट टैक्सेस एंड तो आप अगर अपनी कॉपी में इतना तो बना ही चुके होंगे, ठीक है, उसको छोड़ के आप आगे आओ, अब आप ये भी बनाओ जिससे आपको समझ में आए कि फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क होता है, जो होते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मेरा जीएसटी. नाउ इज जीएसटी, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी एंड ऑल, बिकॉज वी हैव जीएसटी in place of it, and taxes on production is various other taxes like your pollution tax and all. Okay, यानी जो भी आप लाइसेंसिंग फीस या पोल्यूशन टैक्स वगैरह पे करते हो प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए, दैट इज योर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. ओके, जैसे मैंने क्या बोला, ओके, या टैक्सेस ऑन पोल्यूशन, जो भी. नाउ सी, there can be one more thing. Okay, there can be one more thing. जैसे सरकार हमसे पैसा लेती है in the form of tax, उसी तरह सरकार कुछ पैसा देती भी है in the form of subsidy. ठीक है, कई आइटम आप सुने होंगे, these are subsidized products. Many of the agricultural commodities or agricultural capital goods are subsidized. What is subsidy? सब्सिडी इज कि जैसे सरकार पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वैसे कुछ पैसा सरकार देती भी है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. यानी कि आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, वहां पे सरकार दे देगी. ओके, बात समझ में आ रही? यानी अगर हमें सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी देखो अब अगर मेरे लिए मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्लीज इतना लिख लो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. इससे ज्यादा मैं घिचपिच करूंगी तो बोर्ड बहुत मेसी हो जाएगा. ओके, सो इतना लिख लो आप, प्लीज इसको क्लियर लिखना, नॉट द वे आई हैव रिटन इट. प्लीज राइट इट प्रॉपरली बिकॉज आई हैव टू फॉलो द स्टेयरकेस, सो आई एम नॉट इरेजिंग इट. यू कैन कम बैक एंड राइट एवरीथिंग इन दिस डायग्राम ओनली. वील डू मोर थिंग्स ओवर हियर ओनली. ये आप उसके आगे आगे लिख सकते हो अपने समझने के लिए.
ओके अब मैंने क्या बोला था, लैंड के लिए रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेस सैलरीज होती है, और क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, या फिर आप इसको कह सकते हो इनकम। ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम आते हैं। मार्केट प्राइस जो है वो तुम्हें, ये दाम वो है जो जिस पे तुम्हें मार्केट में चीज़ अवेलेबल है। अब अगर तुम्हें इसमें अवेलेबल है चीज़ मार्केट में, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होंगे, सब्सिडी भी कुछ मिली होगी। जब सब्सिडी मिलती है, ठीक है, जब सब्सिडी मिलती है तो क्या होता है, चीज हमारे लिए हमें उतना पैसा नहीं देना होता है। बात समझ में आई? द वैल्यू ऑफ द थिंग वॉज हियर अब देखो, टैक्सेस जो बीच में लगने थे वो 700 के लगने थे, उस हिसाब से तुम्हारी चीज कितने की हो जाती, 2100 रुपए की चीज तुम्हारे लिए हो जाती 2800 रुपए की। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है, व्हेन आई से सब्सिडाइज्ड आर्टिकल है, इसका मतलब है कि ये 300 रुपए कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट इज बेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। हमें सब्सिडी मिल जा रही है, तो हमारे लिए वो चीज क्या हो जा रही है, सस्ती हो जा रही है। नाउ दिस हैपन्स, I clearly remember I was auditing a firm and there they had to pay transportation cost for railways, okay, for the input that they used to get in their campus, okay, जो भी वो input मंगाते थे उस पर उनको रेलवे को पैसा देना पड़ता था, लेकिन वो पैसा क्या होता था, वो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी थी, तो उनको वो पैसा जो है वो सब्सिडाइज्ड होता था। यानी अगर रेलवे के रेट है कि वो 5 रुपए पर केजी पे ट्रांसपोर्ट करेंगे या 5 रुपए पर टन पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, जितना भी, ठीक है, तो उसमें कंपनी कितना देगी, कंपनी देगी फॉर मान लो 3 रुपए, और बाकी 2 रुपए कौन देगा, गवर्नमेंट दे देगी। वाई? बिकॉज दे आर एग्रीकल्चर वाली कंपनी, सो दे आर हेल्पिंग दी एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, तो कुछ गुड्स जो है वो सब्सिडाइज्ड होते हैं, यानी आपको उसका पूरा दाम नहीं बेयर करना है, सरकार उसमें आधा दाम बेयर करने आ जाएगी। यानी अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक मुझे जाना है, या मैं अगर रिवर्स बोलूं, अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, कैन आई दिस रिलेशनशिप कि मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, है ना, और सब्सिडी को ऐड कर दो। सब्सिडी क्यों लिखा है, सब्सिडी को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में ये दो चीजें हैं जो आती हैं। यानी कि 2500 पे हमें सामान मिल रहा था, उसमें मेरा 700 रुपये तो टैक्स है, लेकिन 300 रुपये सरकार ने दे दिए हैं। ओके, तो हम अपने आप अपने फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में दो चीजें आ सकती हैं, वन द थिंग दैट गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम अस and one the thing that government gives us. Okay, government gives is subsidy and government takes is indirect taxes. Now those indirect taxes can be in the form of
Product tax and taxes on production. Do not ignore anything because anything can form a question in your exam. And then you can't say कि oh shit, this was so छोटा सा concept and I didn't focus and this thing appeared in the exam. So आप please ध्यान रखो कि आपको हर चीज़ ध्यान से समझनी है. एक बार ध्यान से सुने रहोगे और समझे रहोगे, एग्जाम में लिख दोगे. बात समझ में आ रही है? रटने की कोशिश करोगे, अंग्रेजी है, रटते चले जाओगे, लेकिन अगर ठीक से नहीं रट पाए या समझ में नहीं आई हुई तो एग्जाम में हो जाएगी गड़बड़. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें ये समझना है कि दिस इज द थिंग दैट गवर्नमेंट गिव्स, दिस इज द थिंग दैट गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम अस. ओके, सो व्हाइल कमिंग फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, अगर मार्केट प्राइस में से तुम इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट कितना है. सिमिलरली अगर फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो और सब्सिडी हटा दो तो तुम्हें मार्केट प्राइस पता चल जाएगा. सिंपल. ओके, नाउ कमिंग टू GDP-FC. व्हेन आई से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, What do I mean to say? अब देखो, जब हम GDP-MP पढ़ रहे थे तो हम सबसे पहले शुरुआत ही ऐसे कर रहे थे कि it is the measure of the market value of all the goods and services produced. Now I'm going to say it is the sum total of what? Of all the factor income generated in the economy. It is the sum total of the factor income generated in the economy gross of depreciation. Okay, that is what? That is GDP-FC. यानी अगर तुम ये देखो कि एक देश में कमाई हम किस तरह से नाप सकते हैं भाई, या तो तुम उस तरह से नापो कि जो जो उसकी वैल्यू है बाजार में, ठीक है, या तो हम इस तरह से नाप लें, या तो हम इस तरह से भी तो नाप सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो पैसा दिया गया है, किसको दिया गया है? टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी पैसा टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया गया है वो भी तो भाई उसी सामान की वैल्यू है. बस इस फैक्टर कॉस्ट में और इस मार्केट प्राइस में किस चीज का फर्क है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का फर्क है. ओके, अदरवाइज तो आउटपुट की वैल्यू वही होती ना जो मैंने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उस प्रोडक्ट को बनाने में दिया. बात समझ में आ रही है? ठीक है. सो व्हेन आई से कि सारी फैक्टर इनकम को टोटल कर लो तो तुम अपने आप कहाँ आ जाओगे? तब तुम अपने आप जीडीपी पे नहीं आते हो, तुम अपने आप एनडीपी पे आते हो, नेट नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आते हो. ठीक है, यानी इफ यू जस्ट सम टोटल दिस तो तुम किस पे आते हो? एनडीपी-एफसी पे आते हो. एनडीपी-एफसी से अगर तुम्हें जीडीपी-एफसी में आना है तो तुम्हें उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा. एनडीपी-एफसी से तुम्हें अगर एनएनपी-एफसी पे जाना है तो तुम्हें उसमें क्या ऐड करना होगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि एनडीपी-एफसी क्या होता है या फॉर एग्जांपल जीडीपी-एफसी क्या होता है? इट इज वेजेस प्लस सैलरीज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट, ओके, प्लस मिक्स्ड इनकम. व्हाई इट इज मिक्स्ड इनकम? क्यों? क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर काम करता है जो खुद के लिए करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि वो अपना ही पैसा भी लगाता है और वो अपनी ही बुद्धि भी लगाता है. इसलिए हम या तो इसको कैपिटल इनकम भी नहीं बोल सकते और फैक्टर इनकम भी नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वो अपनी ही कैपिटल भी लगाता है और अपनी ही बुद्धि भी लगाता है, तो वो इनकम क्या हो गई? मिक्स्ड इनकम. दैट इज व्हाई दिस इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स प्लस डेप्रिसिएशन. क्यों मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर रखा है? क्योंकि हमें ग्रॉस पे आना है. जीडीपी में क्या होता था? यहां पे डेप्रिसिएशन एडेड होता था और नेट पे आने के लिए उसको निकालना पड़ता था.
लेकिन यहां पर इन सब में आप देखो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड गुड्स इज नॉट एडेड, सो अलग से हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा. दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, कैन यू प्लीज सी द डेफिनेशन ऑन थर्ड पेज. 7th point, the production and income approach, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, measure the domestic product as the cost paid to the factors of production. Therefore, it is known as domestic product at factor cost. GDP at factor cost is called so because it represents the total cost of factors, that is land, capital and entrepreneurship. Okay, labor, capital and entrepreneurship. Now at this stage we need to clearly understand the difference between the concept market price and factor cost. The difference is the product cost and taxes on production. Okay, please come to the formula on 4th page, 3rd box. GDP FC is equals to GDP MP minus indirect taxes plus subsidies. ठीक है, यानी अगर आपको FC पे आना है तो GDP MP माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज विच इज योर वेजेस प्लस सैलरीज, देन इज ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एंड प्लस डेप्रिसिएशन आपको करना जरूरी है. ऑपरेटिंग सरप्लस उसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमें लैंड भी चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए. ठीक है, और इन सब के बाद जो एंटरप्रेन्योर कमा रहा है, जो मिक्स्ड इनकम उसको आ रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, सो दिस हियर वी गेट व्हाट, अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे तो दिस वी गेट जीडीपी एफसी. सिमिलरली अगर मुझे एनडीपी एफसी चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज नथिंग बट जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि सिंपल अगर बोला जाए तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. प्लीज कंफ्यूज मत हो कि बुक में लिखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और आप तो कहीं लिखी नहीं है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को कि हम लेबर को क्या देते हैं, एम्प्लॉइज को दो तरीके से कॉम्पनसेट किया जाता है. जो लेबर क्लास होता है दैट इज कॉल्ड वेजेस. ठीक है, जो एम्प्लॉय क्लास होता है दैट इज कॉल्ड सैलरीज. तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज plus interest, rent and your profit and all, which is your operating surplus, जो भी तुम्हें मिलता है, and mixed income plus depreciation. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके. Now what is GNPFC? Again GNPFC क्या हो सकता है, GDPFC में आप NFIA ऐड कर दो, which is net factor income from abroad, which we already know what it is, and then we come to our national income, which is net national product at factor cost, which is nothing but you can write NDP FC plus NFIA. Okay, NDP FC plus NFIA. क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन शामिल है? नहीं, वहां डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है. यानी नेशनल इनकम इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि देखो, अगर इसको, क्या इनमें से किसी को भी नेशनल इनकम बोला गया? नहीं, सिर्फ इसको नेशनल इनकम बोला जा रहा है. यानी कि आपको फैक्टर कॉस्ट के रिलेशन में डेफिनेशन बतानी है. तुम वहां पे ऐसे नहीं लिख सकते मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन. नहीं, ऐसे नहीं. नेशनल इनकम लिखना है तो नेशनल इनकम आप सीधे बताओ कि इट इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें आप नीचे आके फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी एक्सप्लेन करोगे. ओके, बात समझ में आ रही है? अब कैन वी प्लीज कम ऑन द 9th पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर नेशनल इनकम. प्लीज हाईलाइट द फॉलोइंग वर्ड्स. National income is defined as the factor income
Please highlight factor income accruing to the normal residents of the country. Please highlight normal residents. ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स हो गए जो प्रोडक्शन बाउंड्री यानी अपनी टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं. ओके, इट इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, यानी कि अब आप हाईलाइट कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तीनों चीजों को ले लिया. फैक्टर इनकम से हमको पता चला कि हम एफसी वाले टर्म पे बात कर रहे हैं. फिर उसने कहा कि एक नॉर्मल रेसिडेंट्स जितना कमाते हैं यानी जितना भी हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर कमाई होता है प्लस NFIA, that is net factor income from abroad. In other words, national income is the value of factor income generated within the country plus factor income from abroad in an accounting year. National income is defined as the net value of all the economic goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus the net factor income from abroad. According to CSO, that is the Central Statistical Organization, national income is the sum total of factor income generated by the normal residents of a country in the form of wages, rent, interest and profit in an accounting year. जब वो normal resident बार बार बोल रहा है, इसका मतलब है कि does not include foreign companies and foreign firms. Okay? रेजिडेंट्स की डेफिनेशन जब आप अपने टैक्स के सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, जो कंपनियां फॉरेन में रजिस्टर होती हैं उन्हें रेजिडेंट कंपनी नहीं बोलते. ओके, NNPFC इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम विच इज फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस NFIA. जब हम वहां पे NFIA कह दे रहे हैं तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी लिख सकते हो, क्योंकि NFIA जब आएगा तो NFIA का मतलब ही होता है कि टेरिटरी के अंदर भी जो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन ओन फर्म्स थी उनकी कमाई को एक्सक्लूड करो. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में पहले उसको ले लो और फिर NFIA के थ्रू उसको रूट आउट कर दो. ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? यानी या तो आप लिखोगे कि जो नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, ओके, और या तो आप लिखोगे कि अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस NFIA. देन अगेन दैट सेम लाइन इज रिटन. फैक्टर इनकम वी हैव आई हैव एक्सप्लेन. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि दो तीन रिलेशंस जो हैं उनमें फर्क क्या होता है. देखो, ये याद रखो कि डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में NFIA का फर्क होता है, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन का फर्क होता है. ओके, और MP और FC के बीच में इनडायरेक्ट टैक्सेस और किसका, सब्सिडी का फर्क होता है. ओके, अब कहां से कहां आना है वो तो देख लोगे. देख लोगे का मतलब, अगर मुझे MP से FC पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे, सब्सिडी प्लस होगी. जब मुझे FC से MP पे आना है तो हमेशा खुद ही सोच लेना कि भाई कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर दो और सब्सिडी माइनस कर दो, क्योंकि सब्सिडी का पैसा हम देते नहीं, टैक्स का पैसा हम देते, इसलिए वो मार्केट प्राइस बन जाता है. ठीक है, यानी आप यहां से यहां पहुंच सकते हो. कैसे? अगर मुझे मान लो GDP MP से NNP FC पे पहुंचना है तो मुझे क्या क्या एलिमेंट्स पता होने चाहिए. मुझे अलग से डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, अलग से मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे अलग से क्या पता. क्या आपको ये जरूरी है? अगर मान लो तुम्हें वैल्यू एडेड पता है, मान लो तुम्हें वैल्यू एडेड पता है लेकिन तुम्हें वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग से नहीं पता है, तब क्या तुम यहां से वहां पहुंच सकते हो? हाँ, पहुंच सकते हैं, क्योंकि देखो GDP MP को NNP FC में कन्वर्ट होने के लिए G को N में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ग्रॉस से नेट जाना पड़ेगा, यानी हमें डेप्रिसिएशन कंपोनेंट अलग से पता होना चाहिए. फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल, यानी डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमें NFIA अलग से पता होना चाहिए, और MP को, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, MP को FC बनाने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अलग से पता होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? यानी आप इस पूरे में
कहीं से भी कहीं जा सकते हो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्लीज राइट डाउन, ये चीज कहीं अलग से बॉक्स बना के लिख लो, मैं यहां लिख देती हूं, आप अलग से अपने पास कहीं भी बॉक्स बना के लिखो या इसी के ऊपर लिख लो, ग्रॉस से अगर नेट बनाना है तो ये पता होना चाहिए, देखो कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो तुम्हारा नेट बन जाएगा, ओके, यानी ये ग्रॉस और नेट की रिलेशनशिप हो गई। डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो तो नेशनल बन जाएगा, यानी ये डोमेस्टिक और नेशनल की रिलेशनशिप हो गई। और मार्केट प्राइस में ऐड कर दो सब्सिडी और माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो तुम्हारी ये फैक्टर कॉस्ट बन गया, यानी ये फैक्टर कॉस्ट रिलेशनशिप हो गई। यानी आपको जो भी क्वेश्चन में एलिमेंट दिया हो, अगर आपको ये सब देता है, ठीक है, मान लो आपको ये सब देता है, तो आप पहले फैक्टर कॉस्ट वाली चीज निकाल लो और उससे फिर ये और ये अप्लाई करके आप यहां तक आ जाओ। यानी आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो, आपको कुछ भी एलिमेंट दे, चाहे वो वैल्यू एडेड दे दे, चाहे वो ये सारे कंपोनेंट्स दे दे, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप कहीं से भी कहीं जा सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दिस फॉर्म्स द बेसिस कि तुम्हें किस तरह से समझना है। ध्यान रखना कि जब तुम इन चीजों को ऐड करते हो और सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं करते हो, यू डोंट गेट ग्रॉस, यू गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे जब तुम वैल्यू एडेड को ऐड करते हो तो यू अल्टीमेटली गेट योर ग्रॉस एंड वहां से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है नेट में जाने के लिए। ठीक है ना, हाउ डू वी एक्चुअली मेजर आवर नेशनल इनकम? ओके, what are the precautions that we take? What are the methods of measuring national income? What is the use of measuring national income? What is the limitation of it? ठीक है, we'll discuss all these things and few more concepts in our coming lectures. Okay, stay tuned. Bye bye.